Hi friends. Today's we have to discuss here the catalysis. In the previous video, we have to discuss about the catalysis, homogeneous catalysis, heterogeneous catalysis. So many examples of homogeneous as well as heterogeneous catalysis are taken. Now we have to discuss about the enzyme catalysis. In that video we have to discuss here about the enzyme catalysis. That means it is the catalysis process. In that catalysis process, enzyme is used as a catalyst, is known as a enzyme catalysis. The catalysis in which the enzyme is used as a catalyst is known as a enzyme catalysis. Enzyme catalysis is also called as a biological catalysis. Enzyme catalysis is also called as a biological catalysis. There are so many biological processes or so many reactions act as a enzyme catalysis. Digestion, fermentation, these processes are involved in a enzyme catalysis. Enzyme is used as a catalysis. It is work best at that temperature. This temperature is known as a optimum temperature, and the enzyme is work at which pH value? This pH value is known as a optimum pH. That means enzyme work best at optimum pH as well as at optimum temperature. Now here there are two examples are given. In that example, the first one example, conversion of maltose to glucose by using an enzyme is known as a maltase. That means maltose is hydrolyzed to give the glucose, but there is one enzyme used is known as a maltase. In the second example, conversion of cane sugar, that means sucrose, takes place into a glucose and fructose, but in presence of another enzyme as a invertase. देखो अभी हमको अगर एंजाइम हमेशा एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एंजाइम. तो एंजाइम कैसे ध्यान में रखिए. जैसे यहाँ पे माल्टोज लिखा है. माल्टोज ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन. तो माल्टोज और ये जो कैटेलिस्ट करके हमने एंजाइम यूज़ किया उसका नाम है मल्टेज. दैट मीन्स एंजाइम इज आल्सो आइडेंटिफाइड बाय द word ASE in the last of this name. The word ASE, these three words ASE, from this word we can identify the enzyme. But in case of second example, in the name of invertase, the last three words are AGE. This is something wrong. Here INVERTASE यानी कि इन्वर्टेज होना था. Now here we have to discuss catalytic promoter as well as inhibitor. अभी ये कैटेलिटिक प्रोमोटर क्या होता है और इनहिबिटर क्या होता है उसके बारे में हम देखेंगे. द सब्सटेंस विच देमसेल्फ डू नॉट एक्ट एज अ कैटेलिस्ट बट इनहेंस द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट. यानी कि ऐसा सब्सटेंस जो खुद कैटेलिस्ट नहीं होता मगर वो कैटेलिटिक प्रॉपर्टीज़ को और कैटेलिस्ट के प्रॉपर्टी को इन्हेंस करता है, बढ़ाता है, ऐसे सब्सटेंस को हम प्रोमोटर बोलते हैं. द सब्सटेंस which themselves do not act as a catalyst but it increases or enhances the activity of a catalyst are called as a promoter. In for example, we know that
there is a formation of NH3 from nitrogen and hydrogen gas. नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को मिला के हम NH3 बनाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ आयरन. आयरन एक्ट एज अ कैटलिस्ट, बट this reaction or this synthesis is takes place in presence of molybdenum as well as aluminum oxide. If this synthesis of NH3 from nitrogen and hydrogen in presence of iron act as a catalyst, this reaction is takes place in presence of molybdenum and aluminum oxide, then the speed of the reaction is also increases. Therefore molybdenum as well as aluminum oxide is also called as a promoter. But कई ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की स्पीड, कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन एज वेल एज कैटलिस्ट की जो इफिशियंसी है उसको कम करती हैं. द सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड पॉइजन. उनको पॉइजनस सब्सटेंस बोला जाता है या इनहिबिटर भी हम बोल सकती है. जो सब्सटेंस कैटालिटिक प्रॉपर्टी को रोकते हैं, इनहिबिट करते हैं, उन सब्सटेंस को हम पॉइजन या इनहिबिटर बोल सकते हैं. इसलिए हमने सेकंड डेफिनेशन कही, द सब्सटेंस विच डिक्रीजेस द इफिशियंसी ऑफ कैटलिस्ट इज कॉल्ड पॉइजन एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ कैटालिटिक पॉइजनिंग और इनहिबिटर. For example, in the same process, that means in the formation of NH3 from nitrogen and hydrogen in presence of catalyst iron, suppose this reaction is takes place now, sorry, एक minute, the N2 plus thrice-2 in presence of Fe gives NH3. The iron catalyst employed in the synthesis of ammonia is poisoned by H2S. But in the reaction there is some mistake because in the below of this arrow there is written poisoned by H2 only, but not H2. This is poisoned by H2S. In contact process, sulfuric acid, oxidation and sulfur dioxide is poisoned by arsenic oxide. That means if in the process of in the first example, in the preparation of NH3 from nitrogen and hydrogen gas, iron act as a catalyst, but this reaction is poisoned or inhibited by the H2S. That means this H2S is called as a poisons or inhibitor, and this catalytic process is known as a catalytic poisoning. After that, in the next example, we have to discuss again ऑटोकैटालिसिस. ये ऑटोकैटालिसिस क्या होता है? अगर एखादी रिएक्शन हो रही हो, और उस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिल रहा है, एखादी रिएक्शन हो रही, दो रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहे और एक प्रोडक्ट मिल रहा है. दिस प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दिस टू रिएक्टेंट इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट. अगर जो प्रोडक्ट हमको रिएक्शन में मिल रहा है वो अगर कैटलिस्ट का काम करता है तो हम उस रिएक्शन को ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन बोल सकते हैं. और दिस फिनोमिना इज कॉल्ड एज अ ऑटो कैटालिसिस. द फिनोमिना इन विच either of the product form during the reaction act as a catalyst for the reaction is known as a autocatalysis. सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिया KMnO4 का. द कलर ऑफ KMnO4 disappears slowly on treating it with oxalic acid. अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को ऑक्सैलिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो KMnO4 का जो पर्पल कलर है वो डिसअपियर होने लगता है, बट स्लोली. व्हेन वी हैव टू ऐड द KMnO4 solution, that means potassium permanganate solution which is violet in color or purple in color, when
react with oxalic acid, then this purple color disappears slowly, but after some time the this rate of disappearance of color become faster. That means color स्टार्टिंग में जो कलर KMnO4 का है थोड़ा थोड़ा कम होते जाता है, बाद में उसका डिसअपियरेंस होने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है. वाई? दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Mn डाइपॉजिटिव आयन. दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Mn डाइपॉजिटिव आयन विच एक्ट एज ऑटो कैटलिस्ट फॉर द रिएक्शन. यानी कि जो Mn डाइपॉजिटिव आयन्स उस रिएक्शन में मिल रहा था वो ऑटो कैटेलिसिस का काम करता है, इसलिए जो स्टार्टिंग का रेट था, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ कलर ऑफ KMnO4 वो बढ़ जाता है क्योंकि Mn डाइपॉजिटिव आयन उस रिएक्शन में प्रोड्यूस होते हैं और वो ऑटो कैटेलिसिस का काम करते हैं. इन द नेक्स्ट एग्जांपल, द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर बिकम फास्टर आफ्टर सम टाइम ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H+ आयन और एसिटिक एसिड. तो हमको बहुत बार हमने ये रिएक्शन पढ़ी है, एस्टर का अगर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको एसिड और अल्कोहल मिलती है. इफ़ वी हैव टू हाइड्रोलाइज एस्टर then it gives the product like acid and alcohol. The hydrolysis of an ester become faster. यानी कि जो हाइड्रोलिसिस प्रोसेस है एस्टर की स्टार्टिंग में स्लो रही थी, मगर जैसे जैसे रिएक्शन होती जा रही वैसे वैसे वो रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाती क्योंकि वहाँ पे H+ आयन एज वेल एज एसिटिक एसिड एक्ट एज ऑटो कैटालिसिस. उसके बाद हम देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट. अगर एंजाइम कैटलिस्ट करके यूज़ कर रहे हैं तो वो रिएक्शन की स्पेशलिटी कौन सी होती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट आर गिवन बिलो. फर्स्ट वन कैरेक्टरिस्टिक इज दैट एंजाइम कैटलाइज रिएक्शंस आर हाईली स्पेसिफिक. ये स्पेसिफिक क्या होता है? स्पेसिफिक यानी कि अगर एखादी स्पेशल रिएक्शन हो तो उसे जो कैटलिस्ट यूज होता है वही सिर्फ एक ही रिएक्शन को वो कैटलिस्ट चलेगा. देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज अ हाईली स्पेसिफिक. एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन आर हाईली स्पेसिफिक, दैट इज वन एंजाइम फॉर वन रिएक्शन. हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये एंजाइम और 4 रिएक्शन को उसी तरह से काम करेगा, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रिएक्शन, एंजाइम स्पेसिफिक. नाउ सेकंड वन इज द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन आर नॉर्मली हाइड्रोलिटिक इन नेचर. एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन का नेचर हाइड्रोलिटिक रहता है. थर्ड वन, एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन टेक्स प्लेस विद द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस. यानी कि जो भी एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन होंगी वो विद द इवोल्यूशन ऑफ गैसेस होंगी. चौथा कैरेक्टरिस्टिक है द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन. अगर एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है तो नेचुरली रेट ऑफ रिएक्शन भी उसका और स्पीड ऑफ दिस रिएक्शन इज आल्सो फास्ट. बट दैट मीन्स द रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज डिपेंड अपॉन the enzyme concentration. Now the fifth characteristic is that enzyme catalyzed reactions are highly susceptible to pH of favorable range. that means उसकी ऑप्टिमम pH की रेंज जो है, यानी कि एंजाइम 5 to 7 pH अगर वैल्यू हो रिएक्शन में, रिएक्टेंट जो मिक्सचर रहता उसका अगर pH 5 to 7 तक के हो तो एंजाइम इज हाईली ससेप्टिबल और उसको फेवरेबल रेंज रहेंगे, उस पर वो ज़्यादा एक्टिव रहेंगे. द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन इज नियरली 30 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट मीन्स एंजाइम बिकम्स इफेक्टिव एट 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एज वेल एज pH रेंज 5 to 7. अगर एखादे रिएक्शन मिक्सचर की pH की रेंज 5 to 7 हो और उसी टाइम पे अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो, दैट मीन्स दोनों अगर फेवरेबल कंडीशन होती है
तो एंजाइम बिकम्स मोर इफेक्टिव. Enzyme being colloidal in nature, their action is diminished by electrolyte. तो एक एग्जाम्पल दिया है सुक्रोज का कन्वर्शन ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में. तो इन्वर्टेज एक्ट एज अ कैटलिस्ट. एंजाइम यानी कि इन्वर्टेज इज अ एंजाइम विच इज एक्ट एज अ कैटलिस्ट. वन ऑफ द एग्जाम्पल्स आर गिवन हियर. तो इस प्रकार से हमने 7-8 कैरेक्टरिस्टिक एंजाइम की पढ़ ली है. तो आपको इस वीडियो में एंजाइम कैटलिस्ट के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी मिली है. आप यही वीडियो 1-2 बार देख के इसमें से नोट्स भी निकाल सकते हैं और आप अच्छे से पढ़ें और ध्यान में रखें. तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ. ओके, थैंक यू.